Hello everyone, welcome back to my channel, and if you are new to my channel then I'm welcoming you all on my channel. Today's video is about my journey of becoming a cabin crew. Well, you can say my journey of achieving my goal, because this video is not for like cabin crew only, but then for everyone, like yes, for everyone जिनको जैसे कुछ भी चीज़ थोड़ा सी डिफिकल्टी आ जाने के बाद थोड़ा सा डिमोटिवेट फील हो जाता है या फिर कुछ हो जाता है. सो दैट इज द पार्ट ऑफ लाइफ, राइट? सो दिस वीडियो इज फॉर ऑल ऑफ देम. इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एवरीथिंग. हाउ डिड आई लर्न इंग्लिश? हाउ डिड आई गेट दैट आइडिया और थॉट अबाउट बिकमिंग अ cabin crew? How did I get to know about the opportunities, interview opportunities, and how many interviews I've given? Because last time when I made the video, I got so many comments regarding my experience and regarding how many times I got rejected and also all these points I'm going to cover in this video. So be there till the end. I know definitely you're going to learn something, or you're going to get a bit inspired maybe. This video is requested as I was in a training, PHT, that was the pre-hire training which is conducted by Indigo company, Indigo Airline. So I had my teacher there, Nidhi ma'am. When I shared my story or my journey of becoming a cabin crew, she literally she said that people usually feel कि थोड़ा सा कुछ interviews देने के बाद they feel demotivated, and if they get rejected one or twice then they feel demotivated and they feel like giving up. So that is the reason she asked me to make video, and here I'm going to share my experience with you. First thing I'm going to talk about is how did I get this idea of becoming a cabin crew? कैसे मुझे दिमाग में आया कि नहीं ये बनना चाहिए. बेसिकली आई एम फ्रॉम अ विलेज जहाँ पे किसी को मतलब पता नहीं, पता होगा नहीं होगा, बट लाइक इट वॉज वेरी यूनिक फील्ड. आई वॉज इन 8th स्टैंडर्ड, तब मैंने न्यूज़पेपर में आई रेड दिस वर्ड एयर होस्टेस, एंड दैट टाइम आई वॉज लिटरली नॉट अवेयर अबाउट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. सो what I did, I searched it on Google, and ऐसे रोज सर्च करता है क्या होता है, कैसे होता है. So I used to search. This is how I got fascinated about this field, and I thought about becoming an air hostess. Another thing is कि 10th में जब थी तो बहुत बच्चों का होता है ना ऐसे कि पहले टीचर बनना होता है, फिर डॉक्टर बनना होता है, फिर इंजीनियर बनना होता है. मतलब अकॉर्डिंग टू योर एज योर गोल चेंजेस, बट विथ मी इट डिडंट हैपन. आई वॉज लाइक 8th में भी मुझे कैबिन क्रू ही बनना था, एयर होस्टेस ही बनना था, 9th में भी, और 10th के बाद भी मेरा गोल शिफ्ट नहीं हुआ. एंड आफ्टर 12th एज वेल मुझे यही फील्ड मेरे लिए सही लगी, तो मुझे इसी फील्ड में एंटर करना था. So the first thing is clear. This is how I thought about becoming a cabin crew. And the next step is like from where I got the ideas, or I got to know about the criteria and all. So all thanks to Google and YouTube and Instagram. So these were the like streams when I used to where I used to search about like what are the criterias. Like every airline has their own criteria, so I used to search for every airline कि क्या requirements होती है, height, weight, जो भी है, BMI होता है, ये सारी चीज़ें होती है, communication, confidence तो था थोड़ा बहुत मेरे में, but then English मुझ में कुछ भी नहीं थी. I mean मुझे English कुछ भी नहीं आती थी, English नहीं थी मुझ में. So yeah, वो नहीं था, English वगैरह नहीं आती थी मुझे, and वो ऐसे पब्लिक स्पीकिंग वाला वो सब थोड़ा था, बिकॉज आई वॉज मतलब आई यूज टू बी एक्टिव इन स्कूल एंड ऑल. सो वो थोड़ा सा बेसिक चीजें थी, बट देन उतना वो लेवल का नहीं था. सो दीज 3 वर द ऑप्शंस, बिकॉज आई हैड नो वन लाइक ऐसे प्रॉपर कोई इंसान या फिर कोई कैबिन क्रू एक्सपीरियंस्ड पर्सन नहीं था मेरे पास जिसको मैं पूछ सकूं कि कैसे करना होता है, कहाँ जाना होता है, क्या करना होता है. सो यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड गूगल, दिस 3 वर माई फ्रेंड्स. So this is how I found out about every criteria and all. The next step is how did I learn English, confidence and communication and all these things. How did I learn these things? So जैसे कि सब लोग करते हैं, इंग्लिश सीखना है तो क्लासेस लगाओ. So मैंने भी क्लासेस लगाए थे.
बट देन मैं बोल नहीं पाऊंगी कि क्लासेस में मैं सीख गई इंग्लिश, क्योंकि मुझे समझ में तो पहले से ही आता था कि आगे वाला क्या बोल रहा है, वो थोड़ा थोड़ा आई यूज टू कैच, बट देन मैं बोल नहीं पाती थी। मतलब मुझे रिस्पॉन्ड करना नहीं आता था। सो जब मैंने क्लासेस किए, सो इट वॉज फॉर 3 months एंड it was in Nagpur only. I am from Nagpur, so I joined English speaking classes in Nagpur. But then 3 महीने तक मुझे थोड़े बेसिक ऐसे ग्रामेटिकली सिखाते हैं वो लोग कि ऐसे कंस्ट्रक्ट करो, ऐसे बोलो, ऐसे वगैरह। सो मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं वहां से इंग्लिश सीख पाई, बट देन वो क्लास ऐसा था जहाँ पे सब कुछ मतलब ऐसे आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग एंड ऑल, ये सारे फैक्टर्स पे भी काम किया जाता था। सो वहां पे जाके मेरा कॉन्फिडेंस जो बूस्ट हुआ ना, ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा बूस्ट हुआ, ऐसे मुझे लगा। और फिर उसके बाद से मैंने जो रियल इंग्लिश सीखी है, जो प्रैक्टिस की है, वो मैंने खुद से सीखी है, ऐसे मैं कहूंगी, क्योंकि आई यूज टू रीड नॉवेल्स, बहुत सारी नॉवेल्स पढ़ी, लिटरली मैंने आज तक ऐसे 200 और 250 के आसपास नॉवेल्स पढ़ी है। तो नॉवेल्स की वजह से, और एक बुक बनाती थी मैं, रजिस्टर था मेरे पास, कि जिसमें मैं वर्ड्स लिखती थी, जो भी नया वर्ड मुझे मिला तो आई यूज टू राइट दैट वर्ड एंड लेटर ऑन आई यूज टू फाइंड द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। तो फिर मुझे इस तरीके से वोकैबुलरी में जमा करती गई। सो नॉवेल्स, यूट्यूब, टेड टॉक्स वगैरह मैं सुनती थी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई यूज टू डू इज थिंक इन इंग्लिश, बिकॉज आप दिन में सबसे ज्यादा बात खुद से ही करते हो, राइट? तो मतलब अगर आप सोचते हो इंग्लिश में तो वो चीजें आपको मतलब आदत पड़ जाती है आपके ब्रेन को वो लैंग्वेज बोलने की, या फिर कोई भी लैंग्वेज अगर सीखना है, स्टार्ट थिंकिंग इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। सो वो चीज मैंने थिंक इन इंग्लिश, वो मेरा एक रूल था। और अनदर थिंग जो है, मैं लाइक I was someone who used to walk on the terrace for 2 hours, 3 hours. ऐसे कभी भी टाइम मिला तो terrace was my favorite place to go. So what I used to do, I used to go onto the terrace and I used to speak and I used to record myself. कुछ भी topic, random topic लेके I used to speak and then I used to make recordings of that in my mobile phone. And फिर बोल के हो जाने के बाद आई यूज टू लिसन टू दैट रिकॉर्डिंग्स, खुद की रिकॉर्डिंग सुनती थी एंड दैट्स हाउ मुझे समझता था चीजें कि मैं क्या गलत बोल रही हूँ, क्या प्रोनाउंसिएशन कुछ है मेरे जो गलत हो रहे हैं, एंड जो पेस होता है आपके बोलने का कि यहाँ पे पॉज चाहिए, यहाँ पे नहीं चाहिए, मतलब बहुत सारी चीजें जो है आपको खुद पता चल जाती है। आप खुद को जज करने लगते हो कि अरे ये मैंने ऐसे नहीं ऐसे बोलना था, करेक्ट करने लगते हो, जज वॉज द रॉन्ग वर्ड, आई एम सॉरी, बट देन खुद को करेक्ट करने लगते हो कि नहीं ऐसा नहीं, मैंने ऐसे बोलना चाहिए था, अगर इस सेंटेंस को ऐसे बोलती थी तो ज्यादा अच्छे से कन्वे हो पाता था। तो ऐसी चीजें मैं करती थी। तो these are the things so these are the things which helped me in improving my English. So इस तरीके से मैंने इंग्लिश को सीखा और इंग्लिश मुझ में आ गई। Okay. So let's jump on the next part कि इंटरव्यूज के बारे में कैसे पता चला और एंड ऑल। सो बेसिक चीज तो मुझे पता थी कि इंटरव्यू के लिए कभी भी जाते हैं तो किस तरीके से जाना चाहिए। यू शुड वेयर समथिंग लाइक फॉर्मल अटायर, राइट? रेज्यूमे लेके जाना पड़ता है, वो भी पता था। उसके बाद इंटरव्यूज कहाँ होते थे, कैसे होते थे, ये सब अभी कैसे होते थे मुझे कैसे पता चलेगा, क्योंकि मेरे जान पहचान का तो कोई था ही नहीं। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था, जाके देखना। जब तक आप खुद कदम नहीं उठाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा। जब तक आप उस किसी भी चीज, कोई भी चीज अगर आपको चाहिए तो यू हैव टू एंटर इन टू दैट, राइट? बिकॉज घर बैठे आपको नहीं पता चलेगा कि मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कैसे होगा, मैं कैसे करूंगी, कुछ भी नहीं पता चलेगा। सो व्हेन आई वाज 17, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई ट्रैवल्ड टू दिल्ली एंड आई गेव माई फर्स्ट इंटरव्यू देयर फॉर स्पाइसजेट एयरलाइन। तो मैं वहां पे गई। आई वेंट, ऑब्वियसली 17 साल की उम्र में कोई तुमको जॉब नहीं देगा, इतनी बड़ी कंपनीज तो बिल्कुल भी नहीं। वो क्या बोलते हैं, क्या बोलते, बाल अत्याचार बोलते हैं, आई डोंट नो, ये सब कोई नहीं करेगा। मुझे पता था कि मुझे जॉब नहीं मिलने वाला है, बट देन स्टिल आई वेंट फॉर एन इंटरव्यू। मैं इसीलिए गई इंटरव्यू के लिए क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस चाहिए था। आई जस्ट वॉन्टेड टू नो द प्रोसीजर कि कैसे होती है चीजें, मैं कैसे कर पाऊंगी, मतलब
कैसे लोग आते हैं, खुद को कैसे प्रेजेंट करते हैं, सो दैट आई कुड लर्न समथिंग फ्रॉम देम। तो इस इंटेंशन से आई वेंट फॉर एन इंटरव्यू। फिर मैं इंटरव्यू के लिए गई तो मैं कुछ क्वेश्चंस जो थे वो रट्टा मार के गई थी। उनको जो बेसिक क्वेश्चंस जो मुझे यूट्यूब से मिले थे ऐसे रट्टा मार के गई थी। तो फिर उन्होंने मुझे 3-4 क्वेश्चंस पूछे, तो फिर मैंने उनका जवाब दे दिया बिकॉज रट्टा मार थे। और फिर उसने मुझे एक क्वेश्चन पूछा जिसके लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी। उन्होंने मुझे पूछा कि हाउ डिड यू स्पेंड योर लास्ट वीकेंड। दैट टाइम मुझे वीकेंड वर्ड का मीनिंग नहीं पता था। ओके तो मुझे नहीं, मतलब उसके बाद से वो नॉवेल्स का जो बताया ना, तो उसके बाद से क्या मैंने, एंड डोंट जज मी, ओके, आई एम नॉट लाइंग। तो नॉवेल्स पढ़ना मतलब तब भी पढ़ती थी, बट देन उतना मतलब पढ़ती थी, पर वो होता था ना, अभी एकदम इनिशियली तुमको इंग्लिश भी नहीं आती, तुमको कोई लैंग्वेज नहीं आती है, एंड यू आर रीडिंग दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, तो ऑब्वियसली तुमको स्टार्टिंग में समझ नहीं आएगा। बट द थिंग आई डिड वॉज आई डिड नॉट गिव अप। मुझे समझ नहीं आ रहा था, फिर भी मैं ऐसे नहीं कि क्विट कर दूंगी, यार समझ तो नहीं रहा क्यों पढ़ूं, ये मैंने नहीं किया। आई कंटिन्यूड दैट प्रोसीजर एंड दैट थिंग। सो जब मैं इंटरव्यू के लिए गई थी तो मुझे वीकेंड का मीनिंग नहीं पता था। तो मैंने ना मेरा पूरा वीक मैंने कैसे स्पेंड किया वो बता दिया था। तो फिर ऑब्वियसली मैं रिजेक्ट हो गई थी, तो मुझे रिजेक्ट कर दिया गया था। पर मेरी एक्सपेक्टेशंस थी ही नहीं कि मुझे सिलेक्ट होना है, बट देन स्टिल आई क्राइड अ लॉट। माय गॉड, बहुत ज्यादा रोना आ रहा था और मैं बहुत रोई थी। फिर उसके ऑल्टरनेट डे पे मेरा इंडिगो का इंटरव्यू था। तो मैं जब इंडिगो के इंटरव्यू के लिए गई तो उन्होंने तो मुझे मतलब इंट्रोडक्शन, मतलब शी डिड नॉट इवन पे अटेंशन टू मी क्योंकि मैं बहुत डम, मतलब आई डोंट नो। सो मतलब उन्होंने मुझ पे कुछ अटेंशन नहीं दिया, बिकॉज क्योंकि ऑब्वियसली क्यों ही देगा, मेरे में उतना क्वालिटीज नहीं था। आई वॉज नॉट दैट प्रिपेयर्ड और काबिल नहीं थी मैं। तो फिर मैंने बट बहुत सारी चीजें सीखी कि लोग कैसे आते हैं, वो कैसे बैठते हैं, वो लोग मतलब किस तरीके से बात करते हैं, उनका मतलब जिन लोगों को सिलेक्ट किया तो आप लोग सीखते हो उनसे चीजें। तो हर फेलियर में आपको नाराज होना है, रोना इज डिफरेंट थिंग। मुझे रोना इसलिए आया क्योंकि ठीक है, पता नहीं, मे बी मेरे जीवन का वो फर्स्ट फेलियर था, इसलिए मुझे उस टाइम पे बहुत ज्यादा रोना है, क्योंकि उसके पहले मैं कभी फेल नहीं हुई थी किसी चीज में, तो मुझे बहुत ऐसे बुरा लगा था। बट देन मैंने बहुत सारी चीजें सीखी भी थी उस दिन। फिर उसके बाद जो हुआ, उसके बाद तो फिर लॉकडाउन लग गया गाइज। तो फिर तब तक मैंने फिर इंटरव्यू नहीं दिया कोई भी। 17 साल की थी तब, तो आई वॉज वेटिंग कि मैं 18 की हो जाऊँ तब मैं इंटरव्यू दूंगी। पर फिर देन उसके बाद कोविड आ गया था, तो कोविड की वजह से 2 साल तो देयर वर नो अपॉर्चुनिटीज टू गिव इंटरव्यूज एंड ऑल। तो फिर मेरा पूरा छुट्टी थी। पर उन 2 सालों में मैंने खुद को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था। मैं मिरर प्रैक्टिस करती थी, मिरर के सामने ऐसे खड़े होकर खुद को ही क्वेश्चन पूछती थी, आई कांटेक्ट करके खुद को ही रिस्पॉन्स करती थी। ये सब भी मैं रिकॉर्ड करती थी, ठीक है। कैमरा में भी मैं ऐसे खुद का इंटरव्यू लेती थी। तो दिस इज हाउ आई यूज्ड टू प्रैक्टिस अबाउट इंटरव्यूज। तो आप लोगों को जरूरत नहीं है कि हमेशा कोई ना कोई रहेगा आपके पास कि जो आपको गाइड करेगा, जो आपको मतलब बोलेगा कि ये कर, या फिर मैं तेरी प्रैक्टिस लेता हूँ। कोई नहीं बोलेगा, किसी के पास मतलब कभी टाइम होगा कभी नहीं होगा। अभी मेरे घर में नहीं था किसी के पास टाइम, और मतलब ठीक है, मैं मतलब गांव से थी, तो मैं किसी को ऐसे बहुत लोग ऐसे मतलब लगता भी होगा बहुत लोगों को ऐसे कि मतलब क्या ही मैं सोच रही हूँ बनने का, नहीं बन पाऊंगी, ऐसे बहुत लोगों को लगा था, आई नो। तो इसीलिए ऐसा लगता है मतलब कि ठीक है, कर रही है फिर छोड़ देगी आगे जाके। और मतलब बस मेरे माइंड में मैंने खुद को प्रिपेयर करा था कि नहीं, करूंगी तो यही करूंगी और करके दिखाऊंगी। वो मतलब लोगों को नहीं बताना था, बट खुद को बताना होता है। ओके, सो वो चीज थी। तो फिर मैंने किया बहुत प्रैक्टिस किया। तो मुझे लिटरली 1 साल वगैरह लगा इंग्लिश सीखने के लिए, और फ्लुएंट होने के लिए मुझे ऑब्वियसली 1.5-2 साल तक लगा, क्योंकि ऑब्वियसली कोई नई लैंग्वेज सीख रहे हो तो अभी भी मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि मुझे बहुत मतलब आती है, परफेक्ट आती है, कि बहुत सारे वर्ड्स है। खुद की मदर टंग हमको पूरी तरीके से नहीं आती है। कोई आके बहुत शुद्ध वाला पुराना वाला वर्ड बोल देगा तो यू विल गेट स्टक कि क्या बोल रहा है, ऐसे क्या बोला, क्या मीनिंग होता है। तो मतलब इट इज नेवर एंडिंग प्रोसीजर कि कोई लैंग्वेज सीखो या फिर कोई चीज सीखो, इट इज देयर इज नो फुल स्टॉप। ओके, सो ये चीज है। तो 2 साल में मैंने खुद को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया। फिर अपॉर्चुनिटीज आई।
पर घर में जो है वो पैसे नहीं रहते थे बार बार इंटरव्यू के लिए जाने के लिए, और ऊपर से स्टार्टिंग में मैं घर से इंटरव्यू देती थी, ये सिटी में जाओ वो सिटी में जाओ, तो बहुत पैसा भी लगता था ऑब्वियसली, वो सिटी तक जाओ, जाने का पैसा, होटल में रहो या फिर कहीं भी रहो, रहने का खर्चा, वापस आओ आने का खर्चा, तो इतना पैसा नहीं था हमारे घर में। तो फिर बाद में मैंने क्या सोचा कि लेट्स शिफ्ट टू मुंबई। मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी आंचल, तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग मुंबई जाते हैं, मुंबई में रहते हैं। और फिर मैंने तो खुद के लिए मुंबई में जॉब ढूंढा था। सो जब जॉब ढूंढा मैंने, तो मुझे 14,000 सैलरी थी, और यू गाइज नो मुंबई, सो रेंट्स आर वेरी हाई। सो जो मुंबई में मेरा रेंट था वो था 7,500, तो 7,500 आई यूज टू पे रेंट। और फिर खाने वाने का वो थोड़ा सा मेरे को पैसे बचाने पड़ते थे, क्योंकि तुम इंटरव्यू के लिए वगैरह भी जाते हो तो जाने आने का भी खर्चा लगता है, और तुम इंटरव्यू में के लिए जा रहे हो तो ऑब्वियसली लोकल में ट्रैवल नहीं कर पाओगे ना, तुम कैब से ही जाओगे, तो वो बहुत सारे एक्सपेंसेस रहते थे। तो तब मेरा मतलब जो मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ होता है ना, वो मेरा तब था, क्योंकि मतलब लिटरली गेस्ट रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव का होटल में जॉब करती थी, 12-12, 14-14 घंटे का शिफ्ट करती थी, फिर घर आती थी, मतलब ऊपर से भी मुझे रोज दिन का ऐसे 6 किलोमीटर आना, 6 किलोमीटर जाना, ऐसे पैदल चलना पड़ता था, मतलब दिन का 12 किलोमीटर मुझे पैदल चलना पड़ता था, बस से 2 घंटा ट्रैवल करना पड़ता था, लाइक 2 घंटा आने के लिए लगता था, और जाते वक्त जल्दी पहुंच जाती थी, क्योंकि जाते वक्त मैं लोकल से जाती थी, तो जाते वक्त करीबन 1 घंटा मुझे लगता था। तो दिन का ऐसे मिला के 3 घंटे का ट्रैवल, 6 किलोमीटर, लाइक 6 किलोमीटर जाना, 6 किलोमीटर आना, ऐसे 20 रुपीज बचाने के लिए आई यूज टू वॉक ऐसे 6 किलोमीटर रोज, तो 6 किलोमीटर जाने का, 6 किलोमीटर आने का, तो ऐसे 40 रुपीज में बचाती थी। तो मतलब ऐसे बहुत प्राउड फील होता है यार खुद पे, ओह माय गॉड। सो वो एक चीज थी। और रही बात खाने की, तो हमारे जो मतलब होटल इंडस्ट्री में वगैरह होता है ऐसे कि होटल में ही मतलब खाना रहता है स्टाफ के लिए, बट देन चावल और सब्जी रहती थी वहां पे। तो फिर मैंने ऐसे टिफिन विफिन नहीं लगाया था, स्टार्टिंग में लगाया था, पर मेरा बहुत पैसा जा रहा था उसमें और खाना भी अच्छा नहीं आ रहा था। तो फिर मैं कभी सिर्फ टिफिन बुलाती थी, या फिर कभी मतलब ऐसे आई एम प्योर वेजिटेरियन, सो मैं अंडे वगैरह नहीं खाती हूँ, तो कभी होटल में वगैरह एक पर्टिकुलर डे पे, वेंसडे पे वगैरह ऐसे अंडा बनता था, ऐसा कुछ रहता था वहां पे। तो उस दिन फिर मैं भूखी रहती थी, मैं खाना नहीं खाती थी। और फिर बाकी पूरे दिन में जितने भी टाइम मैंने वो जॉब किया या फिर मुंबई में रही, मैं एक टाइम खाना खा के रहती थी। तो मतलब लिटरली 14 आवर्स ऑफ शिफ्ट, 12 आवर्स ऑफ वॉकिंग, 3 आवर्स ऑफ ट्रैवलिंग एंड 1 टाइम मील। 1 टाइम मील में भी सिर्फ चावल और सब्जी खाती थी, और जिस दिन अंडा वगैरह उस दिन मैं टिफिन बुलाती थी। वो टिफिन का खाना आपको पता ही है कैसे आता है। तो वो सब था, वो डिफिकल्ट फेज था, बट तब ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं गॉड इज हेल्पिंग मी, गॉड इज वॉचिंग मी, कहीं ना कहीं मुझे मतलब अपने आप ही मुझे स्ट्रेंथ आ रही थी। सो दैट वॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ आई वुड से। पर देन थोड़े टाइम बाद ऐसे हुआ कि मुझे जो मेरा पर्पस था, जो मेरा गोल था कि मुझे कैबिन क्रू बनना है, तो उस गोल के लिए लाइक इंटरव्यू देने के लिए ही मुझे छुट्टी नहीं मिलती थी। क्योंकि मतलब ऑब्वियसली तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हो तो दे विल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि तुम अपना 100% दो। तो आई वॉज गिविंग माई 100%, बट देन मेरा गोल डिफरेंट था, तो मुझे थोड़ी छुट्टी चाहिए थी खुद की, मतलब एक आधे बार इंटरव्यू रहा तो मैं जाके इंटरव्यू दे सकूं, तो वो छुट्टियां मुझे नहीं मिल रही थी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं क्या ही कर रही हूँ, नहीं क्या मतलब दिस इज नॉट समथिंग विच आई वॉन्ट टू डू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सो लेट्स क्विट द जॉब एंड लेट्स गो टू द नागपुर। फिर ऐसे लाइक 4-5 महीने बाद, या फिर हाँ 4-5 महीने, उतना करेक्ट मंथ याद नहीं आ रहे, बट देन इतने ही महीने के बाद, 4-5 महीने के बाद मैं घर चली गई, वापस नागपुर आ गई मैं। फिर नागपुर आई तो फिर ऑब्वियसली मम्मी वगैरह से बोलते थे कि तू सारे काम आधे ही छोड़ देती है, तो कुछ नहीं, मतलब कोई काम ऐसे पकड़ के एंड तक नहीं करती है, तो आधे में ही छोड़ देती है। लाइक यू गाइस कैन, मेरे दिमाग में वही चल रहा था। मैंने ना इंग्लिश स्पीकिंग के क्लासेस भी खोले थे, क्योंकि तब मुझे इंग्लिश बहुत अच्छे से सीख ली थी मैंने। तो लॉकडाउन का जो सेकेंड वेव के बाद मैंने इंग्लिश स्पीकिंग के क्लासेस भी खोले थे, बट देन क्या हुआ कि मैं मेरा 100% दे ही नहीं पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं,
दिस इज नॉट समथिंग विच आई वॉन्ट टू डू। मेरा मतलब जो दिल है, मेरा दिल सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था वो जगह पे, ये ना ये जॉब पे। मैंने व्हेन आई टर्न्ड 18 आई वर्कड एज अ टेलीकॉलर, क्योंकि ताकि मैं खुद के इंटरव्यूज के लिए पैसे जमा कर सकूं। तो तब मेरा फर्स्ट सैलरी था 7,500, तो मुझे 7,500 सैलरी था मेरा, जीवन का फर्स्ट सैलरी वो था। फिर उसके बाद मैंने ये वाला 14,500 वाला सैलरी किया, लाइक जॉब किया मुंबई में। फर्स्ट जॉब मेरा नागपुर में ही किया मैंने, एज अ टेलीकॉलर आई यूज टू वर्क, बट वहां पे भी मैं अच्छा करती थी काम, तो मतलब पीपल वर इम्प्रेस्ड ऐसे। पर फिर बाद में जब मुंबई में आई तो मुंबई में भी आई यूज टू वर्क ऐसे। फिर उसके बाद मैं वापस चली गई नागपुर गई तो इतना लक मेरा अच्छा, नागपुर में इंटरव्यूज आना शुरू हो गए। तो फिर मैंने नागपुर में इंटरव्यूज देना शुरू कर दिया। तो मैंने गाइस बहुत इंटरव्यू दिए, लिटरली हर टाइम मुझे कुछ नया सीखने के लिए मिल रहा था। तो मैंने गिव अप नहीं किया, इसलिए मम्मी वगैरह भी बोलते थे, मैं भी उन्होंने भी होप छोड़ दी थी, क्योंकि मैंने लिटरली 27 टाइम्स इंटरव्यू दिए और मैं रिजेक्ट हुई। 27 टाइम्स मैं रिजेक्ट हुई। लाइक वो 17 साल वाला इंटरव्यू छोड़ दिया मैंने, क्योंकि वो तो मैंने मजाक, मतलब कैसे होता है क्या होता है देखने के लिए दिया था। तो उसके बाद से मैंने 27 इंटरव्यूज दिए व्हेन आई टर्न 18 उसके बाद। और फिर मतलब हर बार मेरा रिजेक्शन हुआ, तो मैं रिजेक्ट होती गई। फिर एक टाइम आया ऐसे कि मेरा दिल ऐसे सोच रहा था कि नहीं रुतो, क्योंकि घर में फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे। इधर मेरे घर, मतलब बताना नहीं चाहिए, बट देन ठीक है, लोन्स वोन्स थे हमारे घर पे। तो फिर बाद में ऐसे मेंटल पे थोड़ा सा मेंटल पे नहीं, दिमाग पे थोड़ा सा प्रेशर रहता है ना कि नहीं मुझे चीजें ठीक करनी है, लाइक आई शुड हेल्प देम, ऐसे वाई एम आई नॉट एबल टू हेल्प देम माई पेरेंट्स, ऐसे लगता था। तो फिर वो चीजें अलग चलती थी दिमाग में, और ऊपर से ये फेलियर्स भी थे दिमाग में। तो वो टाइम ना बहुत ऐसे थोड़ा सा डिफिकल्ट था मेरे लिए, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। अभी बता रही हूँ तो मतलब अच्छा लग रहा है, क्योंकि मतलब जब तक तुम चीजें देखते नहीं हो ना, तो तुमको वैल्यू भी नहीं रहती है चीजों की। और आई एम लाइक ग्रेटफुल फॉर दैट पीरियड, क्योंकि अभी मैं जो भी हूँ उसकी वजह से ही हूँ। अगर सारी चीजें मुझे इतनी इजीली मिल जाती थी तो मे बी मैं यहाँ पे नहीं होती थी, मे बी मैं ग्रेटफुल नहीं होती थी, या फिर मैं ऐसी नहीं होती थी। मैं अच्छी हूँ पर वो ठीक है, मतलब तुमको ये नहीं वैल्यू नहीं रहती थी वो चीज की। बट मुझे बहुत, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम। और मैं सबसे ज्यादा इस चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ गाइस कि मेरे पेरेंट्स लोगों ने मेरी फ्रीडम, मतलब बहुत ज्यादा फ्रीडम दी मुझे। दे नेवर डाउटेड मी कि कुछ गलत कर रही होगी, क्योंकि दूसरी सिटी में रहती थी। बहुत बार तो ऐसे होता था कि जॉब से वगैरह रात को घर आती थी, मतलब दे नेवर डाउटेड मी। उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, उन्होंने मुझे हमेशा ऐसे मतलब फ्रीडम दिया है, क्योंकि उनको भी लगता होगा कहीं ना कहीं कि ठीक है इसको करने दो जो करना है। भले ही मतलब मुझे जब जॉब लगी ना उसके बाद मम्मी ने बोला था कि मुझे भी नहीं लगा था कि तू कर पाएगी करके, कि तुझे जॉब लगेगी करके। ऐसे हम कपड़े सुखा रहे थे घर में, कपड़े धोने के बाद तो मम्मी ने मुझे ये सेंटेंस बोला था। बट देन आई डेंट फील बैड, बट आई फेल्ट गुड कि उसको ऐसे लग रहा था, फिर भी उसने मुझे रोका नहीं। उसने मुझे बोला नहीं कि तू क्यों टाइम वेस्ट कर रही है, पैसे वेस्ट कर रही है तू, मतलब उसने मुझे हमेशा सपोर्ट किया कि तू कर, तू जा, तू कर। तो वो फ्रीडम मुझे मिला ना, उसकी वजह से भी मैं आज, मतलब आई एम सो हैप्पी, उसकी वजह से भी मैं आज हूँ गाइज, ऐसे मुझे लगता है। तो ये चीज़ हुई, तो इसलिए हार नहीं माननी चाहिए। मैंने तो 27 इंटरव्यू दिए, फिर 28th टाइम जब मैंने इंटरव्यू दिया, दैट वॉज लाइक ओ माई गॉड, दैट इज द अमेजिंग स्टोरी। आई विल, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, बट प्लीज बेयर विथ मी, क्योंकि ये रिक्वेस्टेड वीडियो है और मुझे मजा आ रहा है यार बोलने में। मतलब ऐसे पुरानी चीजें ताजा हो रही है, सो आई एम फीलिंग सो हैप्पी, मुझे अच्छा लग रहा है बोलने में। तो सुन लो थोड़ा। तो फिर बाद में क्या हुआ ना, मेरा इंटरव्यू था जो ये नागपुर में ही था। तो मैंने जब टाइमिंग चेक किया था तो मुझे ऐसे दिखा वहां पे कि मेरा इंटरव्यू 1 से 3 के बीच में है, ऐसे मुझे दिखा। सो देन आई थॉट कि मैं मेरी दोस्त के यहाँ पे जाऊंगी, उसके घर पे रेडी होंगी, क्योंकि मैं मतलब जो ली मेरिडियन होटल है वहां पे इंटरव्यू था, और मेरा घर उससे बहुत दूर है, मतलब 32 किलोमीटर्स में भी, प्रॉबेबली इतना दूर है।
तो फिर मैंने सोचा था कि मैं मेरी दोस्त के यहाँ पे जाती हूँ, उसके घर पे रेडी हो जाऊंगी, क्योंकि ऑटो से जाना था तो ऐसे स्कर्ट वर्ट पहन के मैं ऑटो से नहीं जा पाती थी ना। तो फिर मैंने सोचा उसके घर जाती हूँ, रेडी होती हूँ और फिर उधर से उसको बोलूंगी कि चल गाड़ी पे इंटरव्यू, मैं कुछ मतलब चलना मेरे साथ, तो फिर मैं इंटरव्यू दूंगी, ऐसे सोचा था। तो फिर जब मैं उसके घर पहुंची 10:30 बजे, ओके, इन द मॉर्निंग 10:30 बजे मैं उसके घर पे पहुंची। फिर मैंने सोचा कि फिर से टाइमिंग चेक कर लेती हूँ। फिर जब मैंने टाइमिंग चेक किया तो इट वाज लाइक कि मेरे इंटरव्यू जो था, मेरा इंटरव्यू का टाइमिंग जो था वो 8 से 11 तक था। तो आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मैं पहुंच भी पाऊंगी कि नहीं पहुंच पाऊंगी, जाऊँ कि नहीं जाऊँ, कोई फायदा होगा कि नहीं होगा, ऐसे सब सोच रही थी। तो इट वाज लाइक कि ओ माय गॉड, अभी तो मेरे मतलब मौका ही चला गया ना मेरे हाथ से इंटरव्यू देने का। भले ही रिजेक्ट हो गई रहती थी, आई डोंट माइंड, बट इंटरव्यू मुझे देना था। तो फिर बाद में फिर उसके पास गाड़ी भी नहीं थी उस वक्त, क्योंकि उसकी जो बहन थी वो जिम लेके गई थी गाड़ी। तो फिर मैंने फट से मेरे भाई को कॉल किया, मतलब दूसरा भाई जो नागपुर में रहता है, तो वो उसको मैंने फट से उसको मैं कटती थी उस वक्त, तो मैंने उसको कॉल किया कि मुझे लेने के लिए आ करके, क्योंकि इंटरव्यू देने के लिए जाना है फट से। तो फिर वो फट से आया, मैं फट से रेडी हुई। रेडी भी मैं मतलब मैंने मेकअप नहीं किया उस दिन, कुछ बहुत ऐसे ज्यादा वाला, आई जस्ट मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसे टचअप किया, बट आई वॉज लुकिंग ऐसे प्रोफेशनल वाला, लाइक वेल ग्रूम थी। तो बाल खुले करके गई थी, हमेशा मैं बन बना के जाती थी, बट इस टाइम मैं बाल खुले करके गई थी इंटरव्यू के लिए। भाई आया फट से पहुंचे, हम वहां पे पहुंचे 11:30 बजे। इंटरव्यू का टाइमिंग था 8 to 11, बट देन वो प्रोसीजर लंबी चलती है ना कि फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड। फिर मैं गई, देन आई फेल्ट हैप्पी कि एटलीस्ट उन्होंने मुझे अलाउ किया। ऑलरेडी 2 लड़कियां बैठी थी जिनका फर्स्ट राउंड होने का था, सो आई वॉज रिलैक्स कि ठीक है। फिर बाद में फर्स्ट राउंड हुआ हमारा, तो आई वॉज सिलेक्टेड। सेकेंड राउंड हुआ हमारा, तो आई वॉज सिलेक्टेड। फर्स्ट राउंड था जिसमें उन्होंने मुझे नॉर्मल मेरे रेज्यूमे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे। सेकेंड राउंड था जिसमें BMI वगैरह होता है, विजन चेक होता है, ऐसे बेसिक चीजें होती है, स्कार्स एंड ऑल चेक होता है, तो वो सब हुआ। थर्ड राउंड हुआ जो वीडियो कॉल पे मतलब दे आस्क्ड मी मेनी क्वेश्चंस। मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर है, तो मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चंस क्या पूछे वगैरह वो याद नहीं आ रहा है। तो फिर वो राउंड भी मेरा क्लियर हुआ। एंड देन फोर्थ राउंड हुआ जो पर्सनल इंटरव्यू था, नहीं, फोर्थ राउंड था ग्रुप डिस्कशन ऐसा कुछ। तो फिर मेरा ग्रुप डिस्कशन हुआ और उसमें भी मैं सिलेक्ट हो गई। फिर फिफ्थ राउंड जो था वो था मेरा पर्सनल इंटरव्यू। तो पर्सनल इंटरव्यू में वो सर थे जिन्होंने मुझे 4 बार मुंबई में फर्स्ट राउंड में रिजेक्ट कर दिया था। तो बट मैं नर्वस नहीं थी इस बार, क्योंकि मुझे तो आदत हो गई थी फेलियर की। क्या ही होगा, 7 से ज्यादा रिजेक्ट हो जाऊंगी ना, फिर से आऊंगी, ऐसा मतलब वो बन गया था मेरा। तो पर्सनल इंटरव्यू हुआ, फिर बाद में बाहर ऐसे हमको वेट कराया, सब लोग थे लाइक इंटरव्यू के लिए तो बहुत ऐसे 1,500-2,000 लोग आते हैं, सिलेक्ट होते हैं ऐसे 17-18, कभी 7, कभी 5 ऐसे लोग सिलेक्ट होते हैं। तो फिर हम ऐसे करीबन 15-18 लोग बैठे थे बाहर, वेट कर रहे थे रिजल्ट्स का। फिर उधर से वो मैम आए और उन्होंने ना नाम लिया ऐसे कुछ लोगों का, तो उन्होंने मेरा भी नाम लिया उसमें। तो हर बार क्या होता था कि ऐसे जब नाम लेते थे तो वो लोग ऐसे बुलाते थे और बोलते थे कि सॉरी गर्ल्स, इस बार तुम लोगों का नहीं हो पाया, तो प्लीज ट्राई योर लक नेक्स्ट टाइम, ऐसे बोलते थे। तो मेरे बाजू में मेरा भाई बैठा था, मैंने उसको बोला शीटी आ रही हुई, मेरा नाम लिया अभी, मतलब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसे बोला मैंने। वो भी सैड हो गया बेचारा। तो मैं भी मतलब मैं तो प्रिपेयर्ड ही थी, ठीक है क्या ही होगा ऐसे। तो फिर बाद में जब बाहर गए तो फिर बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, कॉन्ग्रेचुलेशन लेडीज, यू आर सिलेक्टेड, सो आगे की प्रोसीजर के लिए प्लीज वेट, ऐसे बोला था। एंड आई वॉज सो हैप्पी, ओ माई गॉड। उसके बाद मैं गई और बताया मेरे भाई को कि आई गॉट सिलेक्टेड करके, तो खुशी हो रही है। ओके 10 अक्टूबर वो दिन था, 10 अक्टूबर 2000 याद नहीं बोला ना, मेरी वो मेमोरी थोड़ी ये है। 2020 होगा क्या, 2019, 2022 नहीं यार, कब हुआ मेरा, जाने दो गाइस, 2000 याद नहीं आ रहा है। मैं मेरे डायरी में लिख के है तो कभी पढ़ के बताऊंगी 2000 क्या था। बट देन 10 अक्टूबर था, इतना मुझे बहुत अच्छे से याद है। फिर बाद में मैंने मेरे घर पे कॉल किया था, सो दे वर सो हैप्पी, मतलब माय मदर लिटरली क्राइड। मुझे भी बहुत रोना आ रहा था कि ओह माय गॉड आई मेड इट, ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी और बहुत खुश हो गई थी मैं, बहुत खुश। गाइस ऐसी चीजें होती है, अप्स एंड डाउन्स हर किसी की लाइफ में आते हैं।
आपको बस डिसाइड करना होता है कि आपको सच में वो चीज चाहिए कि नहीं चाहिए। हो सकता है कि मतलब मेरे नसीब में वो चीज नहीं भी रहती थी, बट देन मैंने मैनिफेस्ट कर ली हो वो चीज इतना सोच के। और सिर्फ घर में बैठ के सोचोगे तो कुछ नहीं होगा, आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे ना उस चीज के लिए। बहुत ज्यादा मेहनत भी करोगे तो ऑब्वियसली भगवान को भी तरस आ जाएगा कि दे दो भाई, इसको क्या चाहिए दे दो, बेचारा कितनी मेहनत कर रहा है। तो डू नॉट गिव अप इतना इजीली यार। मतलब ठीक है ना, कोई चीज अगर चाहिए तो वर्क करो उस पे, भले ही वो इंसान हो, भले ही वो कोई जॉब हो, भले ही कोई भी चीज हो जो आपको चाहिए। सो यू शुड गिव योर 100%। मेरा तो हमेशा ऐसे था कि मेरे लाइफ का वो रूल ही था, है अभी भी, कि कुछ भी करो गिव योर 100%, गिव योर 200%। क्या ही होगा ज्यादा से ज्यादा। मैं मतलब रिजेक्शन के लिए मत डरो, रिजेक्ट ही हो जाओगे ना, क्या होगा। और ये चीज हमेशा याद रखो कि कोई भी सिचुएशन आती है, जैसे मेरे इसमें लोन्स वाली सिचुएशन थी, इंटरव्यू में फेल होने वाली सिचुएशन थी, पहली बार फेल हुई, दूसरी बार फेल हुई, जॉब छोड़ दिया, घर वाले भी मतलब ऐसे बोलते थे। मतलब ऑब्वियसली फील होता है ना, अगर इतने 20 बार 27 बार इंटरव्यू दे रहे हो तो ऑब्वियसली उनको भी लगेगा कि क्या ही कर रही है, क्यों ही दे रही है, अगर हो ही नहीं रहा तो ऐसे तो लगेगा ना। बट देन यू हैव टू, यू जस्ट बी ऐसे बहरा बन जाओ कि मतलब कौन क्या बोल रहा है, डोंट लिसन टू योर इनर वॉइस। मेरी आवाज तो मुझे बोल रही थी कि नहीं मैं कर पाऊंगी, मुझे पता है कि मैं कर लूंगी, ऐसे मुझे हमेशा थॉट्स आते थे। और बाकी सारी चीजों में मेरा दिल सेटल होता ही नहीं था, तो ऑब्वियसली मुझे वो चीज करनी ही थी। तो अभी मैं जो, बहुत सारे लोग हैं जो क्रीप करते हैं इस जॉब के बारे में कि मतलब रात को नींद नहीं होती या फिर ऐसा वैसा, बट मुझे अच्छा लगता है, बिकॉज दिस इज वॉट आई चोज फॉर माई सेल्फ एंड दिस इज वॉट आई हैव, दिस इज द थिंग फॉर विच आई हैव स्ट्रगल्ड, फॉर विच आई हैव वर्कड सो हार्ड। सो आई एम ग्रेटफुल। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि अभी मैं गोल्स बनाना छोड़ दूंगी, अभी मैं मतलब लाइक ग्रोथ के बारे में नहीं सोचूंगी, न्यू अपॉर्चुनिटीज के बारे में नहीं सोचूंगी, ऐसा नहीं है। यू शुड ऑलवेज set goals for yourself and you should always strive and you should always work hard to achieve them। इतना ही मैं बोलूंगी। तो ऐसे हर छोटी बात पे डिमोटिवेट होना, आई डोंट थिंक इट्स एन ऑप्शन। तो अगर आपको कुछ चाहिए तो लड़ो उसके लिए, लड़ना तो पड़ेगा, तब जाके चीज मिलेगी, तब जाके आप हंसोगे ऐसे मेरे जैसे तो हाँ, डोंट गिव अप। चीजें तुम जब चाहते हो ना कोई चीज करने के लिए तो अपने आप सॉल्यूशंस आते हैं। मेरे घर में किसको पता था एयर होस्टेस क्या होता है, मेरे मतलब बहुत सारे लोगों को जो नहीं पता था एयर होस्टेस क्या होता है। तो जब मैं बनी तो पता चला, बहुत सारी लड़कियों को पता चला। आज मेरे गांव की कुछ लड़कियां बोलती कि उनको भी एयर होस्टेस बनना है। तो ऑब्वियसली यू सेट एन एग्जाम्पल। तो यू शुड वर्क यार, यू शुड वर्क टू अचीव योर गोल्स। यू शुड सी, यू शुड ड्रीम, जस्ट ड्रीम करो, एक्सप्लोर करो और हार्डवर्क करो, मेहनत करो। जस्ट इट इज ऑल अबाउट करो, ट्राई, स्टेप लो। तो बस इतना ही मैं बोलना चाहूंगी, बाकी कुछ। और ये थी मेरी जर्नी, और इसमें और 2-3 चीजें थी जो मैं नहीं बोल सकी क्योंकि मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, बिकॉज मुझे एक तो ऐसे हर छोटी चीज शेयर करना नहीं पसंद है। बट देन मुझे लगा कि अगर मैं ये वीडियो बनाती हूँ तो बहुत सारे लोगों को जो है थोड़ा सा मतलब पता नहीं, जो इजीली गिव अप कर देते हैं उन लोगों को थोड़ा स्ट्रेंथ आएगा, क्योंकि नहीं करना चाहिए गिव अप। क्यों गिव अप करना है भाई, मत करो, बोल रही हूँ मत करो ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड fighting. I hope you all win in your life. Bye bye, take care.